Hello everyone, I hope you're doing good. Last week I came up with Bachelor of Statistics and Bachelor of Mathematics UGA undergraduate program, A part of the year 2020 question, UGA 2020, in which there were 30 questions, objective questions. Today I have taken its second part, another part of the paper, that is UGB 2020. Alright, so there are 8 subjective problems, good problems. My name is Shashank Shekhar, Master Teacher of Mathematics at Vedantu. Here is my detailed introduction. And coming to the paper, the very first question in the paper asked was, let I be the root of x square plus 1 equal to 0. I stands for iota. Iota, that is under root of minus 1. And omega be the root of the equation x square plus x plus 1 equal to 0. Means here the x, if we find the root, it can be minus 1 plus or minus iota root 3 by 2. Alright. So consider polynomial fx, which is polynomial a0 plus a1x plus dot dot an x raised power n, where a0, a1, an are all integers. So these are all integers. Okay. Such that f of iota plus omega is equal to 0. Now we need to construct a polynomial in which the root x is iota plus omega. So we'll try to construct least degree polynomial, such polynomial जिसमें कि हमें ये रूट मिल जाए x इक्वल टू आयोटा प्लस ओमेगा. नाउ ओमेगा कंसिडरिंग एनी वन ऑफ द साइन प्लस और माइनस दोनों से फाइनली आंसर सेम ही आएगा, क्योंकि स्क्वेयरिंग भी इन्वॉल्व है आगे चल के. सो यहाँ पे बच्चों जैसे आयोटा और ओमेगा की वैल्यू जैसे -1/2 प्लस आयोटा रूट 3/2, तो वी कैन राइट इट एज अगेन 2 आयोटा -1 प्लस आयोटा रूट 3/2. तो इसमें जैसे अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लाई कर दूँ 2x एंड प्लस 1 कर देता हूँ, और उसके बाद आएगा 2 प्लस रूट 3 आयोटा, एंड देन स्क्वेयरिंग करने से विल गेट 4x स्क्वायर प्लस 4x प्लस 1 इज इक्वल टू, ऑलराइट, सो 4 प्लस 3 7 plus 4 root 3 into -1. Iota square is -1. So finally we are getting 4x square plus 4x plus 7 plus 1 8 is equal to -4 root 3. When you cancel out 4, so x square plus x plus 2 is equal to minus root 3. Again we actually have to find coefficient, a polynomial with all coefficient integer. So root 3 is an irrational number. We should square it once again. So constant is also considered as the coefficient. तो यहाँ पे जो constant बने वाला, तो यहाँ पे squaring कर दें so that कि radical sign यानी कि irrationality remove हो जाए. So squaring करने पे, now squaring again. So we'll get what? See, x raised power 4 a square plus b square plus c square plus 2ab plus 2ac plus 2bc is equal to 3. Minus root 3 square is 3. So finally we are getting the polynomial, the resultant final answer, x raised power 4 plus 2x cube plus 4 plus 1 5x square plus 4x, alright, plus 4 minus 1, 4 minus 3 is 1 equal to 0. So this is that least degree polynomial whose roots, one of the root is iota plus omega. There can be other polynomial also, but least degree का यही है. Alright, so this is the final answer. Coming to the question number 2, let a be a fixed real number. Consider the एक fixed real number है, and consider the equation x plus 2 whole square x into x plus 7 whole square is plus a equal to 0. X belongs to R, where R is a set of real number. For what values of a will the equation have exactly one double root? देखो पहले इसमें क्या करने वाले हैं, मैं इस इक्वेशन को आई विल कंसिडर फर्स्ट दिस फिक्स्ड एक्सप्रेशन. इस फिक्स्ड एक्सप्रेशन को पहले कंसिडर करते हैं. कंसिडर दिस, इसका ग्राफ हमें पता होगा. दिस आर 4 डिग्री, दे आर डबल रूट्स. दिस रूट, इट्स रूट्स आर, इसके रूट्स हैं -2, इनफैक्ट -7, -7, -2, -2. इवन डिग्री पॉलीनोमियल 4 डिग्री का है, तो इसका शेप कुछ इस तरह का होगा.
I mean somewhat like this, x axis. डबल रूट्स हैं -7 एंड -2 ये टच कर रहा है, इसमें y एंड y डैश दोनों जीरो होंगे -2 एंड -7 पे. नाउ इस ग्राफ को और जो ओरिजिनल क्वेश्चन है दैट इज y प्लस a, इनफैक्ट इसमें a ऐड करना है. तो a ऐड करने से क्या होगा कि इसका जो ग्राफ है, व्हाट अबाउट ओरिजिनल ग्राफ, इसका जो ग्राफ होगा वो अगर आप a पॉजिटिव लोगे तो ऊपर की तरफ जाएगा, जैसे ऐसा शेप ले सकता है. और a, तो इस केस में अगर a पॉजिटिव लेते हैं आप, तो इस केस में हमें कोई भी रूट नहीं मिल रहा है, जबकि क्वेश्चन में है हैव एग्जैक्टली 1 डबल रूट. सो हम क्या करेंगे, इसको नीचे की तरफ लाएंगे. देखते हैं, तो नीचे की तरफ लाने से 2 रूट तो आपके डिफरेंट हो गए, यहाँ -7 वाला खिसक गया, और ये इस रूट को हम बनाएंगे यहाँ पे टच करवाएंगे सो दैट कि हमें डबल रूट मिल जाए. और इस केस में हमारा a जो है वो निगेटिव है, ये कन्फर्म है. a निगेटिव, कितना निगेटिव है, जितना डिस्टेंस ये लेना है, ये डिस्टेंस इसको बस फाइंड कर लेना. तो इस ओरिजिनल इस वाले कर्व में जो हमारा जो हमने एज्यूम किया न्यू वाला कर्व, इसमें बस y कोऑर्डिनेट निकालना है. दैट इज मतलब इफ दिस पॉइंट इज सपोज x0, y0, then a has to be minus of y0. Now working for x0, y0, that is one of the point maxima point, local maxima, local max point, local max point. हम क्या करने वाले हैं, y डैश इक्वल टू 0 करने वाले हैं. तो y डैश 0 अगर देखा जाए तो y डैश इज अ क्यूबिक, क्या आता है देखते हैं, 2x प्लस 2 इंटू एक्स प्लस 7 होल स्क्वायर प्लस 2x प्लस 2 होल स्क्वायर इंटू एक्स प्लस 7 इक्वल टू 0. तो यहाँ पे बच्चों हमारे पास 2x प्लस 2 एक्स प्लस 7 कॉमन आ जाएगा, और x प्लस 7 प्लस एक्स प्लस 2 ये आ रहा है इक्वल टू 0. यहाँ से आपको x इक्वल टू -9/2 आ रहा है, ठीक है, -4.5. तो ये जो x0 है वो यही है, x0, बिकॉज द रिमेनिंग 2 आर पॉइंट्स ऑफ लोकल मिनिमम -7 एंड -2. थर्ड ब्रैकेट से हमें x0 मिला, एंड एट दैट x0, सो y0 इज द वैल्यू ऑफ y एट x0. तो हम लिखने वाले हैं y एट x0 -9/2, -9/2 प्लस 2 का होल स्क्वायर इंटू -9/2 प्लस 7 का होल स्क्वायर. तो ये कितना आ रहा, 4 -5/2 यानी कि 25/4, एंड दिस इज ऑल्सो 5/2 यानी 25/4. सो दिस इज -625/4, 16. So the final answer to this question is a is equal to minus of y0, that is this is plus 624/16. Minus of y0 is -625/16 is the final -625/16 is the final answer to this question. Alright, तो इस पे ही डबल रूट आ रहा है. डबल रूट मतलब यहाँ पे आप ग्राफ पे देखिए डबल रूट आ रहा है, टच कर रहा है. टच करने का मतलब डबल रूट का मतलब है कहाँ पे टच करेगा, एक्स एक्सिस को. रूट भी है और डेरिवेटिव भी वहाँ पे 0 है. तो इस पिक्चर में डबल रूट वहीं पे. बाकी जो रूट्स हैं उसके टोटल देखा जाए तो इसके 4 रूट हैं. एक यहाँ पे मैं इंडिकेट कर रहा हूँ, एक यहाँ पे, और 2 डबल रूट यहाँ पे. तो डबल रूट के लिए a इक्वल टू -625/16. कमिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3, लेट a and b be variable points on x axis and y axis respectively, such that the line segment AB is in the first quadrant. Okay, variable points A and B जो है variable points है, but AB का length fix है. AB का length हमें दिया हुआ है 2D, and let's see with the midpoint of AB, and so midpoint भी vary करेगा. P be the point such that अब P के बारे में जो description है, so let's plot a graph. देखते हैं, जैसे हमने y एक्सिस x एक्सिस प्लॉट कर दिया है, और एक कुछ इस तरह का मान लेते हैं. ये a हो गया, ये b हो गया. a ले लेते हैं यहाँ पे, a एंड b. ये स्लाइड कर रहा है रॉड, 2D लेंथ है टोटल. इसका मिड पॉइंट पे आ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन है C बी द मिड पॉइंट. तो C इज़ द मिड पॉइंट ऑफ AB. ये मिड पॉइंट हो जाएगा. ऑलराइट, so yeah,
and be a point says that, so first condition, P and the origin are on opposite side of AB, mean we have to go far from origin, तो C AB के right में चलते in the first question, and PC is a line segment of length D which is perpendicular to AB, so C से एक perpendicular बनाइए, देखो ये भी D है, ये भी D है, और ये भी हमें D लेके चलना है, तो यहाँ पे कोई पॉइंट P है. अब ये एक तरह से टी शेप हो गया, ए बी पी बी ए, वो वेरी कर रहा है, तो P का कुछ लोकस आएगा. तो यहाँ पे बच्चों क्या कर सकते हैं, P का लोकस हम मान लेते हैं कुछ x, y, ठीक है, P को के कोऑर्डिनेट्स, और ये भी D है, तो डेफिनेटली यहाँ पे एक बढ़िया सा ट्रायंगल बन रहा है, यू कैन सी. आइसोलेस राइट एंगल ट्रायंगल है ये 90 डिग्री दिया हुआ था क्वेश्चन में. ओके, और सी ऐसा है कि या सो आप बताओ, ये एंगल, ये भी डी है, ये भी डी है, ये भी 90, देख रहे हैं, ये 45, ये 45, सारे डी है ना इसमें, तो ये टोटल 90 है, दिस इज 90 डिग्री, 90 डिग्री, और ये देखो ये ऑरिजिन भी 90 है. तो आप ये जो इफ यू the quadrilateral PAOB is cyclic. मैं इसको ज्योमेट्रिकली बताना चाहता हूँ, तो बहुत सिंपली इजीली आ जाएगा. देखिए PAOB is cyclic बिकॉज 90 + 90 180 है, और इनफैक्ट ये सेंटर होगा उस सर्कल का. एक सर्कल बना सकते हैं, AB एज डायमीटर लेके हम कर सकते हैं. सो AB C को सेंटर लेते हुए CP = CA = CB है. एक सर्कल अगर आप ड्रॉ करो, इफ यू ड्रॉ सर्कल लाइक दिस, थोड़ा सा ये कुछ इस तरह से, ठीक है, सर्कल है ये सर्कल. सो यहाँ पे अगर आप देखें बच्चों, तो ये साइक्लिक है और सर्कल हो गया. तो हमें करना ये है कि XY को समहाउ कनेक्ट करेंगे. तो इफ आई ज्वाइन द अपोजिट एंड्स O एंड P, P को ना O से ज्वाइन कर देता हूँ, तो आप देखेंगे ये एंगल देखो 45 डिग्री है, बिकॉज ये D है, ये भी D है ना, ये 45 डिग्री हो जाएगा. ये राइट एंगल ट्रायंगल है, 45 डिग्री, ये भी 45 था वैसे, और ये भी 45. तो अगर हम सर्किल की प्रॉपर्टी लगा दें, तो ये एंगल क्या हो जाएगा, सी एंगल POA इज एंगल PA से बना ना, कॉर्ड PA से, POA एंड PBA सर्किल की प्रॉपर्टी सेम साइड में है ना, इक्वल एंगल है, तो PBA इज 45 डिग्री. सो इट मीन्स ऑब्वियसली जो ये 45 डिग्री है, मीन्स हम कह सकते हैं कि y = x हो जाएगा, नहीं, y = x. सो एज दिस एंगल इज 45 डिग्री, P x, y लाइज ऑन अ लाइन मेकिंग एंगल 45 डिग्री विद x एक्सेस. सो P जो है वो मूव करेगा, सो x = y हो गया ना बेसिकली. tan, आप देखिए tan 45 लगाई, तो दैट इज व्हाट, y/x, तो यहाँ पे आ गया. सो y/x इज इक्वल टू tan 45 डिग्री, इट मीन्स y = x. सो यहाँ पे लोकस जो है सीधा y = x आ जाएगा. यही आंसर है इस क्वेश्चन का. बट इसमें एक लिमिटेशन है, इसमें एक कंप्लीट y = x नहीं बना सकता यहाँ पे. सो इसके जो बाउंड्रीज हैं, बाउंड्रीज क्या है, जब आप जैसे कि यहाँ पे एक तो एकदम वर्टिकल लाइन ले लें, एकदम वर्टिकल हो जाए, व्हेन AB इज़ वर्टिकल, तो एकदम AB वर्टिकल आ गया, तो यहाँ पे आएगा C, और उस केस में ये कुछ आएगा P आपका, तो ये D पे, यहाँ पे आएगा, ये D है और ये भी D है, तो ये D, D आएगा. ये एक्सट्रीम एंड है इसका, ठीक है. या हॉरिजॉन्टल लेने से भी वही लेंगे, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल में भी सेम ही आएगा. और एक एकदम मिडिल मोस्ट पोजीशन सिमेट्री का थोड़ा यूज़ करें यहाँ पे,
तो वहाँ पे जब आप देखेंगे तो ये मैक्सिमम जो डिस्टेंस बनने वाला है वो आएगा लाइक दिस 45 ना, तो ये आपका d√2 because this is 45 and you can see this is d. तो ये कितना हो गया, ये दिस इज ऑल्सो d. तो उस केस में ये भी d है सारे, मतलब ये 2d हो गया. 2d पे जो पॉइंट y को x पे आएगा दैट इज d√2 कॉमा d√2. सो आंसर इसका जो फाइनली है, फाइनल आंसर है y इज इक्वल टू x लोकस वेयर x बिलोंग्स टू, जो x कोऑर्डिनेट हो सकता है या y कोऑर्डिनेट, दोनों सेम है, दैट इज d से लेके d√2 के बीच में. इज द फाइनल आंसर टू दिस क्वेश्चन. ऑलराइट, सो कमिंग टू द, सो ग्राफिकली ज्योमेट्रिकली देखना बहुत ईजी हो गया. अदरवाइज आप HK और कॉस साइन यूज़ करके भी ट्राई कर सकते हैं, ये आ जाएगा. एंड नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4, दिस इज लेट a real valued sequence xn be such that limit of nxn is 0 and tending to infinity, find all possible real values t such that limit n tending to infinity xn log n whole raised power t is equal to 0. अब देखिए ये जो गिवन है इसको हम यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं. लिमिट, मैं इसको लिखना चाहता हूँ, इस लिमिट को, एक सेकेंड, अभी मैं इफ़ आई consider this limit n tending to infinity, और n I am introducing nxn लिख सकते हैं into log n to the base e है, बेस नहीं तो e लेंगे, and power t divided by n. ये सेकेंड पार्ट आ गया. दिस हैज़ टू बी 0. सो ये तो ऑलरेडी बच्चों 0 दिया हुआ है, राइट. इसका लिमिट अब चेक करते हैं. लेट इट बी l. वेयर चेक करते हैं. कंसीडर l इज इक्वल टू लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी. इसको इसको इन्वेस्टिगेट करते हैं. इन्वेस्टिगेट l, दिस रेशियो log n to the power t. We have to find t finally, all possible values, possible values of t such that this limit is 0. So ये आ गया. और इसमें log है, जैसे इसमें आप l'Hopital तो लगा सकते हो, बट n जो है यहाँ पे एक तरह से n इज़ अ नेचुरल नंबर, सीक्वेंस दिया ना, बट आप सैंडविच यूज़ करके आप चाहो तो n को x में कन्वर्ट कर सकते हो. मतलब दिस कैन बी ट्रीटेड एज यूजिंग सैंडविच. तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, या फिर आप इसमें मतलब n की जगह x में लेके चल रहा हूँ, बिकॉज देयर वुड बी सम x फॉर विच n इज़ बिटवीन x एंड, मतलब corresponding to every x ना, there is a natural number, पॉजिटिव रियल, किसी भी रियल x के लिए एक नेचुरल नंबर होता है जिसका इंटीग्रल पार्ट n होता है. तो x n से n+1 के बीच है, और n+1 के बीच हम ये लगा के ना, मतलब जो लिमिट हमें निकालना है उसकी वैल्यू l ही बोलेंगे, और x पे हम लिमिट में l'Hopital लगा के उसका जो भी आंसर आएगा वो सैंडविच के हिसाब से फिर उसका आंसर हम जो आ रहा है वो n के केस में भी वही आएगा. बट चलो यहाँ पे मैं एक काम करता हूँ कि मीन्स अगर मैं कन्वर्ट करूँ ln n को लेट कर रहा हूँ log n टू द बेस e को, आई एम टेकिंग सपोज y, ठीक है, या ठीक है इसको मैं x ले लेता हूँ. इफ़ आई टेक इस सब्स्टिट्यूशन को x से मान रहा हूँ तो बेस e है, तो यहाँ से n क्या हो जाएगा, e रेज़ टू द पावर x. तो अगर मैं इस लिमिट को कन्वर्ट करूँ x में, तो ये x रेज़ पावर t बन गया. यहाँ पे n को लिखूँगा e रेज़ पावर x. तो ये थोड़ा सा सिंपलर बनाने की कोशिश करिए. एंड व्हेन n टेंडिंग टू इन्फिनिटी x, दैट इज ln n टेंडिंग टू इन्फिनिटी, x टेंडिंग टू इन्फिनिटी. नाउ l'Hopital यहाँ लगा सकते हैं. तो लिमिट x टेंडिंग टू इन्फिनिटी t इंटू x रेज़ पावर t माइनस 1 अपॉन e रेज़ टू द पावर x. मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ पहले तो, फर्स्ट ऑफ ऑल, कि इफ़ t इज़ नेगेटिव और 0, देन ये फॉर्म कौन सा. सबसे पहले तो फॉर्म चेक करते हैं. चेक फॉर्म चेक. तो ये t लेस देन इक्वल टू 0 पे ये इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी फॉर्म है ही नहीं.
तो मैं एक्चुअली लॉपिटल लगाने की कोशिश कर रहा था अज्यूमिंग टी पॉजिटिव. टी नेगेटिव या जीरो है तो क्या है, टी नेगेटिव है तो न्यूमरेटर इज एक्चुअली टेंडिंग टू जीरो, जीरो अपॉन इन्फिनिटी. तो जीरो अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म बन रहा है. सो विच इज़ इनफैक्ट जीरो को अप्रोच किया, तो यहाँ पे हमें मतलब एल जीरो हो जाएगा. टी अगर पॉजिटिव है तो हम जैसे टी जीरो टू वन में है तो एक बार डिफरेंशिएट किया, तो टी जीरो टू वन में तो अब टी माइनस वन जो अभी डिफरेंशिएट किया वो निगेटिव हो जाएगा. तो फिर से हमें फाइनाइट बाई इन्फिनिटी जीरो आएगा. बट टी मान लीजिए कि 2 से 3 में है या फिर ऐसे k टू k प्लस वन में, ये तो k टाइम्स आप डिफरेंशिएट कर सकते हो. मतलब अगर यहाँ पे आंसर आ गया तो बढ़िया, अदरवाइज हम यहाँ पे इसको दोबारा से डिफरेंशिएट करेंगे. t कहीं ना कहीं तो होगा, मतलब t मान लो कि कोई भी आप नंबर सोचो, थिंक सपोज 25.3, तो हम क्या करेंगे इसको 26 टाइम्स डिफरेंशिएट करेंगे तब जब तक कि हमें वो मतलब जैसे यहाँ t माइनस वन डिफरेंशिएट करते जाएंगे. एक टाइम आएगा जब x का पावर ना जैसे t माइनस कुछ m आ गया, राइट, सच दैट, और यहाँ डिनोमिनेटर तो सेम ही बना हुआ है. तो t मान लो कि आपका कुछ तो है, सपोज t इज देयर एग्जिस्ट सम m कि t m से m प्लस वन के बीच है, ऐसा कुछ. ऑलराइट, तो आपने इसको डिफरेंशिएट किया, टी एम से लेके m प्लस वन के ले लेते हैं, और m जो है आपका 0 1 2 ऐसे करके चलता जाएगा. तो t जैसे कि आपने इसको अगर m प्लस वन टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, तो m टाइम्स डिफरेंशिएट कर दिया, तो ये फाइनली t माइनस एम अभी भी पॉजिटिव है, बट m प्लस वन टाइम्स कर देते हैं, कुछ ऐसा करके आएगा. Denominator is going to be same because e raised power x का differentiation all the time. So here I am applying L'Hopital rule. ये लगा रहा हूँ जब तक कि पावर नेगेटिव ना आ जाए x का पावर. एक टाइम आएगा जब नेगेटिव आएगा तो उस टाइम पे ये फॉर्म फिर से बन जाएगा जीरो अपॉन इन्फिनिटी, दैट इज जीरो. So in any case, I mean when t is negative, t is positive, for ये कर रहा हूँ मैं फॉर t ग्रेटर दैन ज़ीरो, t ग्रेटर दैन ज़ीरो के लिए कर रहा हूँ. सो t ग्रेटर दैन ज़ीरो में ये फिर से ज़ीरो आ रहा है. सो फाइनली इवेंचुअली इन एनी केस आई मीन दैट इज फॉर एनी t बिलोंग्स टू r वेदर नेगेटिव पॉजिटिव, द लिमिट l इज ज़ीरो. सो दैट लिमिट, ठीक है, इस लिमिट को मैं L1 कह देता हूँ. सो लिमिट, सो L1 इज ऑल्सो ज़ीरो एंड इज ट्रू फॉर एनी t बिलोंग्स टू r. सो आंसर टू दिस क्वेश्चन इज t बिलोंग्स टू r. ऑलराइट, सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द लार्जेस्ट पेंटागन in terms of area that can be inscribed in a circle of radius 1 is regular, that is has equal sides. Okay, largest pentagon in terms of area that can be inscribed in a circle of radius 1. So let's plot a circle first. एक सर्कल मान लो मैं बनाता हूँ, सेंटर है. पेंटागन मैं बनाऊंगा तो इसमें जैसे कोई भी रैंडमली 5 पॉइंट ले सकते हैं आप. रैंडमली कुछ ऐसे बना दिया पेंटागन. सो यहाँ पे A1, A2, A3, A4, A5. अगर मैं इंटरनल एंगल्स की बात करूँ, दिस इज O सपोज. सिमिलरली दिस एंड दिस. सो दिस इज अ पेंटागन. ये जनरल कुछ भी बना दिया पेंटागन. इसमें अगर एंगल्स बात करो तो ये सपोज दिस एंगल इज अल्फा 1, दिस इज अल्फा 2, दिस इज अल्फा 3, दिस इज अल्फा 4, दिस इज अल्फा 5. 5 एंगल हैं टोटल. यहाँ पे देखा जाए तो जो अल्फा 1 प्लस अल्फा 2 प्लस अल्फा 3 प्लस अल्फा 4 प्लस अल्फा 5 आ रहा है 2 पाई. टोटल एंगल एट सेंटर इज 2 पाई. एंड एरिया क्या आ रहा है, बिकॉज द रेडियस ऑफ द सर्कल इज द पेंटागन इज इंस्क्राइब इन द सर्कल ऑफ रेडियस 1 ना. सो एरिया जो है वो आ रहा है, एरिया टोटल एरिया इज हाफ इंटू आर स्क्वेयर साइन अल्फा आई. इसको हम मतलब सिग्मा लगा देंगे यहाँ पे, ठीक है. जैसे कि 5 ट्रायंगल है टोटल ना,
सिग्मा साइन, क्या होता है, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ टू साइड इंटू साइन ऑफ इंक्लूडेड एंगल, अल्फा I from 1 to 5, and R is 1, so finally it is, and R is 1, it is half sigma sine alpha I. Alright, I equal to 1 to 5. So now talking about sigma sine alpha I, एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि जो अल्फ़ा I है वो यहाँ पे किसी भी तरीके से पाई से छोटा होगा, एंगल जो इंडिविजुअल जो इंटरनल एंगल है वो 0 से पाई के बीच है, पॉजिटिव तो लेना ही है और पाई से छोटा है, ठीक है। तो इसका फ़ायदा क्या है, अच्छा पाई से बड़ा नहीं हो सकता, आप मतलब डायमीटर के एक तरफ ही लोगे सारे पॉइंट ना, तो डेफिनेटली वो लार्जेस्ट एरिया का पेंटागन नहीं होगा, उससे हम बिगर कर सकते हैं, मतलब सेंटर इसके बीच में आना चाहिए, तभी हमें एरिया बड़ा मिलता चला जाएगा। सो अल्फा I 0 to पाई में है, तो कंसिडरिंग आई मीन यहाँ पे मैं यूज़ करने वाला हूँ जैसे जेनसेंस इनइक्वालिटी का कंसेप्ट है, जेनसेंस इनइक्वालिटी इसका नाम है। अगर हम नाम पे ना जाएं तो हम देख सकते हैं बच्चों की जो कर्व है y इक्वल टू साइन एक्स का, y इक्वल टू साइन एक्स में बनाने जा रहा हूँ 0 to पाई के अंदर, वो कनकेव डाउन है, और कनकेव डाउन से रिलेटेड ही इनइक्वालिटी है जेनसेंस इनइक्वालिटी। 0 to पाई में ही सारे एंगल हैं, तो मैं यहाँ पे जैसे 5 एंगल लूँगा, ठीक है। तो इन पाँचों एंगल मतलब कनकेव डाउन शेप में क्या होता है, इसमें जो भी इसका जो भी कह लो कि सेंटर ऑफ मास है या फिर मीन पोजीशन है, वो उसका जो y कोऑर्डिनेट होगा, आई मीन वो क्या होगा, और वो कर्व के नीचे है। तो हम यहाँ पे कनकेव डाउन है, कनकेव डाउन शेप में क्या होता है कि जो y कोऑर्डिनेट है ना, एफ ऑफ आपने शायद किया होगा ये जेनसेंस वगैरह, एफ ऑफ एक्स आई सिग्मा आई इक्वल टू 1 to n बाई n is always, if n points are taken on concave down shape, this is less than or equal to f of sigma xi by n, ठीक है। So arithmetic mean of functional values at n points, arithmetic mean है लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड इज फंक्शन वैल्यू एट arithmetic mean of those n points। तो यहाँ पे जैसे मैं अगर लगाता हूँ इस f इज साइन x, ये एफ एक्स है, तो सिग्मा ऑफ साइन एक्स आई आई इक्वल टू 1 to 5 लगाते हैं, n 5 है, बाई 5 इज लेस देन इक्वल टू साइन ऑफ सिग्मा एक्स आई बाई 5। तो यहाँ सिग्मा एक्स आई तो हमारे पास एक्स आई या अल्फा आई कह लें आप, ठीक है। यहाँ पे अल्फा एंगल्स में अल्फा ले रहा हूँ, ओके अल्फा। तो ये कितना हो गया, ये तो टोटल एंगल इज 2 पाई ना, यहाँ देखो 2 पाई है, मैंने ऊपर लिखा है ऊपर राइट में 2 पाई बाई 5। तो फाइनली हमारे पास जो एरिया है वो आ जाएगा सिग्मा साइन अल्फा आई की वैल्यू कितनी आ गई, सो हाफ इंटू 5 यानी 5/2, एरिया इज लेस देन इक्वल टू साइन 5/2 साइन 2 पाई बाई 5। इसकी वैल्यू मैं बात कर रहा हूँ इसके हेल्प से, ठीक है। तो ये आ गया, और एरिया मैक्सिमम एरिया है 5/2 साइन 2 पाई, एंड मैक्सिमम एरिया विल होल्ड, आई मीन इक्वालिटी कब आता है, इक्वालिटी अकर्स व्हेन, तो ये जी जो है n से ये कोई पॉइंट है n है मान लो, उससे नीचे इसी के बेस पे ये इनइक्वालिटी बेस बनता है इसका, ठीक है। इसका जो डेरिवेशन कह सकते हैं, अगर व्हेन ऑल द पॉइंट्स आर टेकन एट द सेम पोजीशन, आई मीन A1 A2 जो भी यहाँ पे लिए गए, A1 A2 मतलब यहाँ नहीं कर्व पे नहीं, मतलब ये 5 पॉइंट जो कर्व पे लिए गए, मीन्स ऑल द एंगल्स आर इक्वल व्हेन अल्फा 1 इज इक्वल टू अल्फा 2 इज इक्वल टू अल्फा 3 इज इक्वल टू अल्फा 4 इज इक्वल टू अल्फा 5 एंड ईच इज 2 पाई बाई 5 इन फैक्ट, मतलब द पेंटागन इज दैट इज व्हेन pentagon is regular, ऑलराइट। तो ये है यहाँ पे सिचुएशन, तो जेनसेंस इनइक्वालिटी के हेल्प से यू कैन ऑब्जर्व इट, ऑलराइट। सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 5, प्रूव दैट द फैमिली ऑफ कर्व्स x square by a square plus lambda plus y square by b square plus lambda equal to 1 satisfies
this differential equation. Okay, so this is dy by dx a square minus b square is equal to x plus y dy by dx. So everywhere we can see कि dy by dx and there is only one parameter lambda. इस lambda को हमें यहाँ पे, so this is equation number 1 assume कर लेते हैं, ठीक है, and we'll differentiate it. Only one time differentiation allowed because it is have this family of curve consists of only one parameter. So in order to remove that parameter we need two equations. One is already the given one जो मैंने one assume किया है, and second we'll get by differentiating it. So differentiating one and dividing by 2 से डिवाइड कर 2 कॉमन आएगा यहाँ पे, तो यहाँ मैं लिख सकता हूँ 2 से डिवाइड करने के बाद लिख रहा हूँ x अपॉन ए स्क्वायर प्लस लैम्डा प्लस 2y 2 कैंसिल कर रहा हूँ y इंटू वाई डैश अपॉन वाई डैश मीन्स dy बाई डी एक्स बी स्क्वायर प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0 आ गया. सो ये इक्वेशन नंबर 2 है. अब मैं क्या करूँगा, मैं लैम्डा रिमूव करने की कोशिश करूँ, या तो मैं 2 से लैम्डा फाइंड करके फर्स्ट में डाल दूँ तो भी आंसर आ जाएगा बच्चों, ठीक है. अदरवाइज एक छोटा एक बेटर तरीका मैं बता सकता हूँ, जैसे यहाँ पे कि आप जैसे फर्स्ट के काफ़ी क्लोज है सेकेंड के जो टर्म्स के जो एक्सप्रेशन हैं, तो आई विल डू व्हाट कि मैं सबसे पहले x 2 में मल्टीप्लाई कर देता हूँ, x इंटू 2 और 1 में इसको माइनस करूँगा. 1 माइनस एक्स इंटू 2 इम्प्लाइज व्हाट, तो ये एक्स स्क्वायर कट जाएगा और ये आएगा वाई स्क्वायर माइनस वाई, अच्छा एक्स वाई एक्स मल्टीप्लाई किया ना हमने सेकेंड इक्वेशन में, एक्स वाई वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर प्लस लैम्डा आएगा, कॉमन डिनोमिनेटर है. देखो ये फर्स्ट टर्म तो कट गया आपके, ये फर्स्ट टर्म तो इज इक्वल टू बी और राइट में 1 आ रहा है तो ये बी स्क्वायर प्लस लैम्डा आ जाएगा. तो ये हम इसको 3 मान लेते हैं. और इसी तरह से हम क्या करेंगे 1 माइनस, मैं अब क्या करूँगा वाई स्क्वायर अपॉन बी प्लस लैम्डा बनाने की कोशिश करूँगा, वो कट करूँगा. तो उसके लिए सेकेंड इक्वेशन में मुझे y से मल्टीप्लाई करना चाहिए और y डैश से डिवाइड करके 2 में के 1 में माइनस करेंगे. सो विल गेट हेयर इन दिस केस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई अपॉन वाई डैश, और ये मिलने वाला है हमें एक्स वाई अपॉन वाई डैश इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस लैम्डा, दैट इज इक्वेशन नंबर 4. नाउ लैम्डा यहाँ से रिमूव करना बहुत आसान है, बाई बाई 4 माइनस 3 कर लेते हैं. 4 माइनस 3 वी गेट व्हाट, वी गेट ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जो लेफ्ट राइट में जो आएगा वैसे लेफ्ट में लिख दिया मैंने. तो दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई वाई डैश माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स वाई बाई वाई डैश. ठीक है, अगर हम मैच कराएं गिवन एक्सप्रेशन से, अगर मैं वाई डैश जैसे कॉमन ले लेता हूँ, ठीक है, तो वाई डैश कॉमन लेने पे आई विल गेट ओके एक्स प्लस वाई वाई डैश, एक्स प्लस वाई एक्स प्लस वाई वाई डैश. ठीक है, सो एक्स में कॉमन ले रहा हूँ फर्स्ट एंड सेकेंड से, एक्स इंटू एक्स प्लस वाई वाई डैश और माइनस कॉमन लेते हुए 1 बाई वाई डैश लूँगा, वाई बाई वाई डैश कर देता हूँ. तो ये आ रहा है वाई प्लस एक्स, वाई वाई डैश प्लस एक्स. ऑलराइट, ये आ गया. तो वाई वाई डैश प्लस एक्स. तो आप देख सकते हैं हम फाइनली इसमें वाई डैश मल्टीप्लाई कर दें तो ये आ रहा है वाई डैश इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू, ये आ रहा है एक्स वाई डैश माइनस वाई, और जो कॉमन पार्ट है दैट इज एक्स प्लस वाई वाई डैश, दैट इज गिवन इन द, आप देख सकते हैं वाई वाई डैश एक्स वाई डैश माइनस वाई. सो ये जो है वो प्रूव करना था, प्रूव्ड. ठीक है बच्चों, वाई डैश मतलब यहाँ पे है वाई डैश का मतलब है डी वाई बाई डी एक्स. ऑलराइट, सो ये प्रूव हो गया इजली. सो कमिंग टू क्वेश्चन नंबर 7, consider right angle triangle with integral valued sides a less than b less than c where abc are positive pairwise coprime. db एक राइट एंगल ट्रायंगल है जिसमें कि a लेस दैन b लेस दैन c है और d आपका राइट एंगल पेयर वाइज कोप्राइम है. पेयर वाइज कोप्राइम, कोप्राइम है ये ध्यान रखना है, कोप्राइम. ऑलराइट, d is c माइनस b, सपोज d डिवाइड से इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड d is c माइनस b. तो एक तो ये है कि यहाँ पे क्या होगा, सी स्क्वायर इज इक्वल टू
बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर है। तो अब मैं डी जैसे सी माइनस बी है तो मैं क्या करूँगा, ए स्क्वायर को लिखूँगा सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और इसको सी माइनस बी इंटू सी प्लस बी लिख सकते हैं, बिकॉज सी माइनस बी जैसे डी दिया हुआ ना, डी इज इक्वल टू डी इंटू बी प्लस सी आ गया। सी माइनस ठीक है, बी प्लस सी या सी माइनस बी, सी प्लस बी एक ही बात है, तो यहाँ पे हम सी प्लस बी ही लिख देते हैं। एंड एज नाउ डी जो है वो क्या है, डी डिवाइड्स ए, मतलब यहाँ पे ए को लिख सकते हो सम के डी, के आपका कुछ पॉजिटिव इंटीजर है, ठीक है ना। सो डी इज, तो यहाँ पे बच्चों मैं ए को अगर मैं यहाँ से यूज़ करूँ, ऑलराइट, तो यहाँ से ए को लिख रहा हूँ के डी, के स्क्वायर डी स्क्वायर, और ये आ गया डी सी प्लस बी। तो यहाँ से हमारे पास सी प्लस बी आ जा रहा है, के स्क्वायर डी, एंड रिमेंबर सी माइनस बी वॉज डी ओनली। व्हेन यू I mean add and subtract these, you'll get b as k square minus 1 by 2 into d, and c as k square plus 1 by 2 into d. So finally हमारे पास जो situations हैं वो, और a क्या था हमारे पास, a था k into d. So a b c जो आ रहे हैं वो बेसिकली हैं के डी, के स्क्वायर माइनस 1 डी बाई 2 एंड के स्क्वायर प्लस 1, और ये मैं ऑर्डर में लिखा हूँ इंक्रीजिंग ऑर्डर में, ये नंबर्स हैं। एंड पेरीमीटर की बात करें, पी इज़ द पेरीमीटर, पेरीमीटर एक कंडीशन दिया हुआ है यहाँ पे, पेरीमीटर देखिए हमें प्रूव करना है डी इज लेस इक्वल टू 2, एंड पहले ये प्रूव करेंगे, एंड देन फाइंड ऑल सच ट्रायंगल्स पॉसिबल ट्रिपलेट्स एबीसी विद पेरीमीटर लेस दैन 100। पेरीमीटर क्या हो जाएगा वैसे यहाँ पे, पेरीमीटर आएगा, चलो लेट्स फर्स्ट प्रूव द पार्ट 1 ए पार्ट। तो देखते हैं यहाँ पे ऑब्वियसली सबसे पहली चीज़ कि ये इंटीजर हैं सारे, ए बी सी बिलोंग्स टू इंटीजर्स। सो अगर मैं केस 1 लेता हूँ, केस 1 है कि मान लीजिए के जो है वो ऑड या इवन होगा, के ऑड है, के ऑड होगा तो के स्क्वायर माइनस 1 इवन हो गया, इवन बाई 2, तो ये आपका के, देन के स्क्वायर प्लस माइनस 1 बाई 2 जो है वो इंटीजर आ गया, इंटीजर आ गया। तो अब इसमें जो को प्राइम वाला फैक्टर है ना यहाँ पे, तो उसमें ना जैसे बी एंड सी विल नॉट बी को प्राइम, ठीक है। तो बी सी को को प्राइम होने के लिए डेफिनेटली इसका जो फॉर बी सी टू बी, क्योंकि पेयर वाइज को प्राइम कर रहा है, को प्राइम डी हैज़ टू बी 1, क्योंकि डी अगर 1 नहीं है, क्योंकि उसका देखो के उसका माइनस 1 बाई 2 कैसे इंटीजर आ जाएगा, और डी दोनों में इन्वॉल्व है, तो अगर डी 1 है तब तो को प्राइम होने का चांस है, लेकिन डी 1 नहीं है तो डी मान लो 2 है 3 है, तो वो उसके जो हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है वो डी आ जाएगा, मतलब डी तो मिनिमम उसका कॉमन फैक्टर है ही, तो डी अगर 2 3 होगा लोगे तो 2 को प्राइम नहीं रह जाएगा, तो डी को 1 होना ज़रूरी है। ऑलराइट बच्चों, सो डी 1, और केस 2 में लेके चलता हूँ, केस 2 में के अगर इवन है तो फिर क्या होगा कि के स्क्वायर माइनस 1 एंड के स्क्वायर प्लस 1 जो है दोनों ऑड हो जाएंगे। उस केस में डी को जो है इवन होना जरूरी है, बिकॉज टू मस्ट कैंसिल डी, बट तो डी बाई 2 को फिर 1 करेंगे, बिकॉज नहीं तो अदरवाइज डी बाई 2 विल बी कॉमन फैक्टर, इन दैट केस डी शुड बी 2, तो डी की वैल्यू 1 या 2 हो सकती है मैक्सिमम। तो फर्स्ट पार्ट हमने प्रूव किया, फर्स्ट पार्ट ऑफ द क्वेश्चन। फॉर द सेकेंड पार्ट याद रखिए के डी के स्क्वायर माइनस, सेकेंड पार्ट के लिए, पार्ट बी के लिए हम आ रहे हैं। सो ए बी सी हमारे पास थे के डी के स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी बाई 2 एंड के स्क्वायर प्लस 1 बाई 2 इंटू डी। नाउ पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर मान लेते हैं पी है, पी आ रहा है, ठीक है, के डी प्लस के स्क्वायर डी आ रहा है, ठीक है बच्चों, देख रहे हो आप
तीनों का सम कर दो ना, सम ऑफ दीज थ्री. सो d/2 कट जा रहा है, k स्क्वायर d/2 k स्क्वायर d. नाउ केस 1, तो केस 1 में क्या था, व्हेन d इज 1, मतलब केस 1 हमारा है, राइट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ व्हेन k इज ऑड, तो d1 आया था, तो उस केस में पेरीमीटर क्या आएगा, पेरीमीटर जो है आपका k ऑड है और पेरीमीटर k प्लस k स्क्वायर, एंड दिस शुड बी लेस दैन 100 गिवन इन द प्रॉब्लम. यू कैन सी क्वेश्चन पार्ट 2 में पढ़िए, लेस दैन 100, तो ये लेस दैन 100 कर देता हूँ. और यहाँ से k ऑड है, तो k की क्या क्या वैल्यूज़ पॉसिबल है, देखिए 1, 3, 5, ठीक है ना, तो 5, 7 एंड 9 भी पॉसिबल है, 5 वैल्यूज पॉसिबल. बट k इक्वल टू 1 लेने पे क्या है ना, ये ऑर्डर इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए, इंक्रीजिंग ऑर्डर. ये क्वेश्चन में गिवन था ना दैट a इज लेस दैन b इज लेस दैन c. तो k1 पे क्या प्रॉब्लम आ रही है कि हमारे पास जो साइड्स आ रहे हैं वो आ रहे हैं, इन केस में k1 लेने पे ये ज़ीरो हो जा रहा है, ये वाला पार्ट ज़ीरो हो जा रहा है, तो ये हम यहाँ पे रिजेक्ट कर देंगे, ठीक है. b ज़ीरो हो जा रहा है और ऑब्वियसली a बड़ा आ जा रहा है b से, मतलब, और ज़ीरो तो पॉसिबल नहीं है. तो यहाँ पे 4 पॉसिबिलिटीज़ बन गए यहाँ पे. और इस केस में जो ट्रायंगल्स के हमारे पास जो साइड्स आ रहे हैं, बिकॉज हमें सारे ट्रायंगल फाइंड करने थे पार्ट बी में, फाइंड ऑल सच ट्रायंगल्स. तो k3 पे जैसे आप देख सकते हैं कि d1 लेना है बच्चों, है ना, तो जो साइड्स हैं वो हमारे पास केस 1 में आ रहे हैं. d1 लेने पे k स्क्वायर माइनस 1/2 एंड k स्क्वायर प्लस 1/2. तो दीज आर द साइड्स. तो हमारे पास 3 लेने पे आ रहा है 3, एंड देन 9 माइनस 1 8/2 4, एंड ये 5 आ रहा है. इसमें आ रहा है हमारे पास ट्रायंगल जो है, ट्रायंगल्स, पॉसिबल ट्रायंगल्स से 5 लेने पे आ रहा है 5, एंड 25 माइनस 1 24/2 12 एंड 13, एंड 7 लेने पे आ रहा है 7, then 7 49 48 24 and then 25. ऑलराइट. और फिर 9 लेने पे आ रहा है 9 स्क्वायर 81 माइनस 1 80/2 इज 40 एंड 41 आ रहा है. ये 4 ट्रायंगल हमारे पास यहाँ आगे. एंड केस 2 पे मैं चलता हूँ. केस 2 हमारे पास होगा व्हेन ओके, यहाँ पे मैंने शायद व्हेन 2 बार लिख दिया है, ठीक है, राइट. केस 2 में हमारे पास हमने ऑलरेडी डिस्कस किया k इज़ इवन, सो d2 था लास्ट केस. आप देखिए यहाँ पे हमने दिखाया k इवन पे d की वैल्यू 2 आई है, राइट, नीचे. सो d2 है, तो जो ABC आ रहे हैं वो आ रहा है हमारे पास k 2k एंड k स्क्वायर माइनस 1 एंड k स्क्वायर प्लस 1. तो उस केस में हमारे पास p क्या आ रहा है, p आ रहा है 2k प्लस 2k स्क्वायर लेस देन 100 करेंगे, मतलब k प्लस k स्क्वायर लेस दैन 50 हो जाएगा. तो यहाँ से बच्चों k की वैल्यू जो k इवन है 2 या 4 या 6, 8 इसको सेटिस्फाई नहीं कर रहा. बट व्हेन k इज़ 2 ना, तो ये देखो ये आ रहा है k 2 पे क्या आ रहा है साइड, a आ जा रहा है 4, जबकि b आ जा रहा है 3. तो ये लेस दैन b लेस दैन a आ रहा है. सो ये पॉसिबल नहीं है, तो इसको हम करने वाले हैं रिजेक्ट, ठीक है. तो k इक्वल टू 4 पे अब क्या आ रहा, और k इक्वल टू 6 पे ट्रायंगल्स क्या आ रहे हैं, पॉसिबल ट्रायंगल्स जो साइड्स हैं, जो साइड्स ऑफ ट्रायंगल हैं वो आ रहे हैं हमारे पास. इन दोनों केसेस में देखिए k को 4 डाल रहा हूँ, साइड्स ये रहे आपके, तो ये आ रहा है 8 एंड 15 एंड 17, और दूसरा है 6 पे 12 35 एंड 37, ठीक है ना. तो ये सारे इसके पॉसिबल हमारे पास आंसर हैं. एंड ये टोटल 6 ट्रायंगल्स हो गए. आंसर हो जाएगा टोटल नंबर ऑफ ट्रायंगल 6 हैं, और ये 6 मैंने लिख दिए हैं सारे. ये हो गया 4 और ये हो गए 2, टोटल 6, टोटल 6 ट्रायंगल्स पॉसिबल. ऑलराइट. Now coming to the question number 8,
a finite sequence of numbers a1 a2 a and b said to be alternating if a1 is greater than a2 is ओके। तो फर्स्ट जो हमारा केस आ रहा है वो है a1 ग्रेटर दैन a2 लेस दैन a3 ग्रेटर दैन a4 लेस दैन a5। और जो सेकेंड हमारा आ रहा है बच्चों वो है इसी का कह लें कि इनइक्वालिटी चेंज कर दो, a1 लेस दैन a2 ग्रेटर दैन a3 लेस दैन a4 ग्रेटर दैन a5। तो ये सारी चीज़ें हैं। और इसमें देखा जाए तो दोनों में ना सिचुएशन 1 और सिचुएशन 2 में नंबर ऑफ, तो मैं सेट 1 और सेट 2 कर लूँगा इससे। दोनों में नंबर ऑफ जो सीक्वेंसेस होंगे पॉसिबल, नंबर ऑफ सच सीक्वेंसेस 5 डिजिट लेंथ 5 का बनाना ना मैं, देखो ये इक्वल होंगे। क्यों? क्योंकि जैसे मैं अगर बोलता हूँ कि a1 बड़ा है a2 से, मैं थोड़ा ऊपर नीचे कर दूँ, जैसे a1 यहाँ पे रखा मैंने कोई, लाइक 1 जैसे यहाँ पे आप कुछ भी ऐसे a1 है, ठीक है ना, a2 है, फिर a3 बड़ा है a3, फिर a4 एंड a5। तो इसी को मैं जैसे फ्लिप कर दूँ, अगर मैं इसको फ्लिप कर दूँ, फ्लिप अपसाइड डाउन, तो हमें ना ये मिल जाएगा। देखो W को M बना दिया ऐसे, लाइक दिस, ऐसे 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 ऐसे। तो ये जैसे आपका, तो कोई भी एक जो भी नंबर आप बना रहे हैं उसमें आप यहाँ पे लेकिन इसको फ्लिप करेंगे ना, तो अपसाइड डाउन करेंगे, तो अभी मतलब यहाँ पे हमें एक टोटल 20 है ना, 1 to 20 AIs की वैल्यू, तो 21 माइनस a1 उसी का एक मेंबर है, राइट। तो यहाँ पे मैं b1 b2 b3 b4 b5 लेने वाला हूँ। वह मैं कह सकता हूँ कि bi जो है वो 21 माइनस ai है। तो यहाँ पे AIs एंड BIs के सेट जब आप लिखोगे तो एक बाइजेक्शन है इन दोनों में, एक बाइजेक्शन मतलब 1 to 1 रिलेशन है, बाइजेक्शन आई मीन 1 to 1 ऑन टू है। एक फर्स्ट सेट के एक एलिमेंट के करस्पॉन्डिंग सेकेंड सेट में एक एलिमेंट मिल जाएगा। जैसे आप BI को लिख लेंगे 21 माइनस AI, सपोज A1 अगर 7 है तो B1 जो है आपका 14 लेना है, आपको उसे अकॉर्डिंगली चेंज करना है, तो एक सीक्वेंस मिल जाएगा। तो यहाँ पे ना दोनों में सेट में ना नंबर ऑफ एलिमेंट्स इक्वल है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 2, बाइजेक्शन प्रिंसिपल कहता है ये है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट 1 की बात करें, देखो A2 या A4 इसमें लीस्ट एलिमेंट है। तब अब मैं जैसे कि ना पहले तो 20 में से 5 चुनना पड़ेगा, यहाँ पे पहले तो आपको 20C5 करना है, एंड करस्पॉन्डिंग टू एवरी केस ऑफ इट, एवरी केस ऑफ 20C5 लाइक से हम लेते हैं 1 2 3 4 5। तो मैं लीस्ट एलिमेंट इसमें जैसे 1 है तो मैं 1 पे जाऊंगा, तो जैसे A2 को ना 1 ले लूँगा, A2 को 1 ले लूँगा। अब सोचिएगा कि या तो A2 या A4 1 हो सकता है, राइट, ठीक है। A2 अगर 1 है तो A4 क्या हो सकता है, 2 के लिए क्या पॉसिबिलिटी, 2 या तो देखिए A2, अच्छा A2 1 है और A4 को हम, एक सेकेंड यहाँ पे कुछ, एक सेकेंड, या आई वाज सेइंग कि A2, इफ A2 इज A2 की जगह मैंने 1 लिया है, राइट। सो A4 2 के लिए क्या पॉसिबिलिटी, 2 कहाँ जा सकता है, 2 देखो अगर A3 पे गया तो 2 से नहीं छोटा नंबर A4 है वो मिलेगा ही नहीं। मैं इस पर्टिकुलर केस की बात करूँ 1 2 3 4 5, ऐसे हर 20C5 में कुछ एक पर्टिकुलर सेट आएगा ना 5 नंबर्स का, लीस्ट एलिमेंट होगा, लीस्ट एलिमेंट यहाँ 1 है। तो A4 जो है आपका 2 के लिए क्या पॉसिबिलिटी, 2 या तो A4 पे जा सकता है, A4 या तो 2 होगा पक्का है, या 3 हो सकता है। 3 कब होगा, जब आपके पास दो यहाँ पे, तो A1 A2 1 है और A2 4 है, तो A1 A3 A5 के लिए हमारे पास टोटल 3 एलिमेंट है, 3 फैक्टोरियल हो जाएगा। और फिर अगर मैं मतलब जैसे A2 को 1 लिया हूँ और A4 को 2 लिया हूँ, ठीक है, उस केस में बात कर रहे हैं।
अगर मैं इसी में सपोज A2 को ये केस बना तो यहाँ पे 6 आ रहे हैं 6 वेज, और मैं A2 को 1 ही रख रहा हूँ और A4 को 3 ले रहा हूँ, तो डेफिनेटली हमारे पास एक तो ये 1 हो गया और यहाँ पे 2 लेना पड़ेगा, बिकॉज इससे बड़ा अगर आप लोगे जैसे 2 कहीं और लोगे ना, A3 हो गया, ये A4 मैंने 3 लिया हुआ है और यहाँ पे A5 है, तो 2 के लिए और कोई पॉसिबिलिटी नहीं है बच्चों, क्योंकि 3 लिया है तो 2 यहाँ आनी, A3 इज मोर दैन 3, A5 इज मोर दैन 3, तो 2 सिर्फ यहीं पे आएगा, फिक्स हो गया। और A5 A4 A3 A5 के लिए 2 एलिमेंट हैं, वो हैं आपके कौन कौन से 4 एंड 5, तो यहाँ पे ना 2 फैक्टोरियल हो जाएगा, दैट इज 2। तो इस केस में आप देखें अगर कि यहाँ पे जो आंसर आ रहा है 6 + 2 दैट इज 8, एंड इसको जब मैं लेफ्ट मतलब आपको मैं अगर मैं इसी को इस लाइन के अबाउट, इस एक्सिस के अबाउट फ्लिप करूँ, आई मीन वर्टिकल लाइन के अबाउट फ्लिप कर दूँ, जैसे मैं अगर A5 कर दूँ और फिर A4 कर दूँ, A3 कर दूँ, A2 कर दूँ और A1 कर दूँ, तो यहाँ पे भी ना इक्वल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे सेम सीक्वेंस के साथ, मतलब डाउन अप। तो यहाँ पे टोटल केसेस हो गए 8 × 2 दैट इज 16, और यहाँ पे भी हमारे पास डबल सीक्वेंसेस है, तो ये NA ये हो गया आपका 16 और ये हो गया फिर आपका 16 and 2, तो ये हो गया 32, और टोटल यहाँ पे 20C5 थे, तो 32 × 20C5, द आंसर टू दिस क्वेश्चन मस्ट बी 32 × 20C5। आंसर जो फाइनली है वो आपका 16 + 16 × 20C5, that is 32 × 20C5 is the answer to this question. I hope you understood it. So easiest manner में जो बताया मैंने, एकलव्य प्रोग्राम के बारे में सब आइडिया है आपको, आप गूगल करें और आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे, जो भी हमारे करिकुलम है अपडेट होते हैं, प्रीवियस ईयर्स में जो बच्चे पढ़ के गए हैं उनसे आप फीडबैक लो। सो कोडा पे आप जाके देख सकते हो, एकलव्य के बारे में सर्च कर सकते हैं। नोटिस बोर्ड पे यूल गेट QR कोड है, यहाँ पे सारे डिस्क्रिप्शंस मिल जाएंगे। सो फॉर द नेक्स्ट एकलव्य प्रोग्राम जो हम प्रोबेबली जनवरी में स्टार्ट करेंगे, तो आप इसके इनरोल कर सकते हैं। यू कैन बी पार्ट ऑफ एकलव्य एंड इफ़ यू आर JS Pen 2023 you'll get every डिटेल थ्रू दिस, ठीक है, इस पेज पे। और 2024 में अगर देना था तो यहाँ पे भी आपके पास जो है कस्टमाइज इन्फॉर्मेशन है, वट एवर इज़ द करिकुलम। वी इम्पैक्ट चैनल पे हमारे पास प्रीवियस ईयर्स IIT JEE के काफ़ी 3-4 ईयर्स के डिटेल सोल्यूशन, क्वेश्चन वाइज डिफरेंट सोल्यूशन हमने यहाँ पे दे रखे हैं, वीडियो सोल्यूशन, यू कैन गो थ्रू इट। एंड हमने KVPY के भी सोल्यूशन दे रखे हैं और CMI एंड ISI के भी सोल्यूशन अपलोड होने वाले हैं बच्चों, और सारे इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन यहाँ मिल जाएंगे आपको। द टाइम फॉर द टीचर क्वेश्चन ऑफ द मंथ September 4th वीक क्या, यहाँ पे मैंने क्वेश्चन दिया, प्रूव इन एन एक्यूट एंगल ट्रायंगल ABC दैट sin A + sin B + sin C इज ग्रेटर दैन 2। ये आप प्रूव करो, ट्राई करो, अच्छा क्वेश्चन है, नॉट दैट टफ, बट थोड़ा अगर आप ग्राफिकली जाएंगे तो ये हो जाएगा। किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में sin A + sin B + sin C वैल्यू 2 से बड़ी होगी। मैक्सिमम वैल्यू इसकी वैसे इक्विलेटरल में आती है 3√3/2 दैट इज क्लोज टू 5.1, बट 2 से बड़ा होगा किसी भी एक्यूट एंगल ट्रायंगल में, 2 से छोटा नहीं हो सकता, बड़ा होगा, ये प्रूव करना है। सो आप इसको ट्राई करें, और इस पर सोल्यूशन अगर आप कर पाते हो तो यहाँ पे मैथ्स लिख के सब्जेक्ट नेम आप यहाँ पे सेंड करें, सेंड टू दिस ईमेल eklavyaSupport@vedantu.com। if your solution is correct and then will reach to you, or you can be the part of Eklavya program. All right, so this was about today's session. I hope you enjoyed it, all the solution, detailed solution. Bye bye, take care, see you next week. Okay.